So, good evening, students. This is Dhiraj's class, and we are studying social science of 8th standard. 8th standard. Okay. So, students, we are looking towards geography, and our first chapter is the types of resources, and that is chapter number 14. So, students, we have already studied what are the actual resources. Means what are the resources? The resources definition, and in yesterday's period we have studied the main types of resources. So resources means what? Anything belongs to nature, fulfills the human need, called as resources. And types of resources, there are n number of list of the resources, and that is why to study about their availability, quantity, quality, and there are a lot of matters. So and the values. So that is why we categorize the resources in different categories, and that main category we yesterday only understood. There are main categories, three main categories of resources: natural resources, human resources, and the human-made resources. And then natural resources are divided into renewable and non-renewable. Renewable में आपने देखा कि biotic and abiotic. Biotic means the resources or the materials which are derived from the living beings are called as biotic resources, and abiotic resources means the resources which are derived from the non-living beings. Okay, निर्जीव चीजों से, अजैविक चीजें हम बोलेंगे. एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए थे. फिर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज का हमने कैटेगरी देखा था. दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है. नॉन रिन्यूएबल में नॉन रिसाइक्लेबल, यानी कि वन टाइम यूज ओनली, देन इट विल बी एग्जॉस्टेबल. ओके, वो खत्म हो जाएंगे. नॉन रिसाइक्लेबल दैट इज कोल, नेचुरल गैस एंड मिनरल ऑयल्स. एक बार हम यूज करेंगे, गाड़ी में पेट्रोल डालो, खत्म हो गया. कोल बर्न हो गया, खत्म हो गया. नेचुरल गैस बर्न हो गया, खत्म हो गया. सो इस हिसाब से वो नॉन रिसाइक्लेबल है. बट सम आर दी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन बी रिसाइक्लेबल. जैसे कि कुछ मिनरल्स है, मेटल्स है, ये हम रीयूज, रिसाइकल वगैरह कर सकते हैं. ठीक है. सो इस तरह से हमने देखा है. And now today we are going to understand some other types of the resources. Some other types of resources में मैंने already बताया था आपको कि इसमें potential की एक कैटेगरी है, इसमें actual की एक कैटेगरी है. जो पेज नंबर 8 पर ऑलरेडी आपको दिया गया है. some other categories of resources. origin of resources ये स्टडी करने की जरूरत नहीं है. origin of resources से दो कैटेगरी बनती है, एक बायोटिक एंड अबायोटिक. ओरिजिन यानी कि उसके उत्पन्न होने के ऊपर, यानी कि वो निर्माण होने के ऊपर दो कैटेगरीज है, एंड दैट आर दी बायोटिक एंड अबायोटिक. चीजें दो ही कारणों से आप लोगों के सामने आएंगी. एक तो बायोलॉजिकली और दूसरा है अबायोटिकली. दैट इज इन ऑलरेडी प्रेजेंट इन नेचर. अबायोटिक अजैविक. ठीक है. जैसे कि पत्थर, सॉइल, दीज आर दी अबायोटिक रिसोर्सेज, एंड दी कैटल्स, वेजिटेशन, दीज आर दी बायोटिक. तो फ्रेंड्स, पोटेंशियल पेज नंबर 83 पर आप पोटेंशियल रिसोर्स देख रहे हो, एक्चुअल रिसोर्सेज देख रहे हो, रिजर्व रिसोर्सेज देख रहे हो. ये तीन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ले जाने की कोशिश करूंगा, विच इज गिवन इन पेज नंबर 84 पे ऑलरेडी दिया है पोटेंशियल, एक्चुअल एंड नंबर 4 दैट इज रिजर्व. So potential resources. So you have to prepare this note. If there will be the question in examination ki define the potential resources या write the note on the potential resources, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले आपको इसकी definition बनानी पड़ेगी, statement बनाना पड़ेगा. The resources which are still in preliminary stage. Still in preliminary stage, primary stage. In short, what we can say, primary stage पे है वो, primary stage पे है. And the resources which are still in preliminary stage and required new technology and advancement of skill to develop them. ऐसे resources which are still in primary basic level पे है, basic stage पे है, and require new technology and advancement in skill to develop them are called as potential resources. मैं एक दूसरे लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ with another example. जब कभी-कभी हम बोलते हैं ना
जैसे क्रिकेटर की बात हो या कोई स्टूडेंट्स की बात हो कि हम बोलते हैं टू मोटिवेट देम कि तुझ में बहुत पोटेंशियल है, आप थोड़ा सा वर्क करो, आप इंग्लिश में अच्छे हो, सोशल साइंस में अच्छे हो, थोड़ा सा स्टडी करो, आप डांस में अच्छे हो और पोटेंशियल है आप में, आप उसको डेवलप करो, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे क्रिकेटर की बात करेंगे, कोई यूथ प्लेयर है, यंग प्लेयर है, तो हम उसमें बोलते हैं कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, ही कैन बी द बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर, उसका यॉर्कर अच्छा है, उसके शॉट्स अच्छे हैं, तो इस तरह से हम बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि ही हैज द गुड पोटेंशियल। तो वो फ्यूचर में आएगा आपके सामने जब वो उसके ऊपर वर्क करेगा। तो सेम थिंग हमारे एनवायरमेंट में सम ऐसे रिसोर्सेस आर देयर, सम रिसोर्सेस आर देयर, दे हैव द पोटेंशियल टू फुलफिल आवर नीड्स, but we don't have still the required technology and skill to develop them, so that is why they remain actually remain potentially they can fulfill our need in future, understand। अभी हम उसको उतनी ज्यादा मात्रा में यूज नहीं करते हैं। सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ रिसोर्सेज, द अफ्रीका हैज वास्ट पोटेंशियल ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि अफ्रीकन कंट्री एक मानसूनल कंट्री है, वो एक इक्वेटोरियल कंट्री है, सो हेवी रेनफॉल आती है, दे कैन बी द बेस्ट एरिया फॉर द वाटर रिसोर्सेज, बट वी डोंट हैव दैट मच टेक्नोलॉजी और दैट मच साइंटिफिक development to collect that water and to store that water and use for the future uses। तो ये एक बात है कि पोटेंशियल है बट स्टिल वी आर नॉट फुलफिल इन दैट, क्योंकि हमारे पास उस लेवल का टेक्नोलॉजी नहीं है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, अगर हम डेजर्ट की बात करेंगे, सो इट इज अ सैंडी रीजन एंड वार्म रीजन, टेम्परेचर इज ऑलवेज हाई इन more than 50 डिग्री सेल्सियस, up to 50 डिग्री सेल्सियस इसमें डे टेम्परेचर होता है, डे टेम्परेचर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाइट टेम्परेचर, डे टेम्परेचर होता है। सो इट कैन बी यूज एज अ सोलर एनर्जी, सोलर पावर, बट वी डोंट हैव दैट मच लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड साइंटिफिकल डेवलपमेंट, सो दैट इज व्हाई वी आर अनएबल टू यूटिलाइज दैट एनर्जी। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल है बट वी डोंट हैव स्टिल दैट टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज एंड टू डेवलप देम। जैसे सेम थिंग कोस्टल रीजन, हमारे पास, हमारे इंडिया को 7500 किलोमीटर का कोस्टल रीजन है, 7500 किलोमीटर, अरेबियन सी से लेकर देन बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, हमारे पास समंदर का किनारा गुजरात से लेकर यहाँ पे वेस्ट बंगाल सीधा पेनिनसुलर प्लेटू, दिस इज पूरा ये पेनिनसुलर प्लेटू पानी से भरा हुआ है। तो वी हैव द कोस्टल रीजन एंड वी कैन हैव द tidal एनर्जी, बराबर है, समंदर के जो लहर होती है उससे हम tidal एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, बट हमारे पास उस लेवल का टेक्नोलॉजी नहीं है, साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं है, सो वी कैन कन्वर्ट we can generate tidal energy and we can fulfill the need of domestic electricity and the industrial electricity। तो उतने लेवल का हमारे पास पोटेंशियल नहीं है, सो पोटेंशियल है बट टेक्नोलॉजी नहीं है। सो दिस काइंड ऑफ द कैटेगरी ऑफ द रिसोर्सेज कैन बी टर्म्ड एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आर द पोटेंशियल रिसोर्सेज। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज द एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज, yesterday only I have told you कि the resources which are already developed in terms of quality, quantity and availability, उनकी मार्केट वैल्यू सब चीजें सर्वे हो चुका है, सब चीजें एग्जामाइंड हो चुकी है, that are the actual resources। The resources which have been developed and are being utilized are called actual resources, already utilize हो रहे हैं। For example, अपने पास मिनरल ऑयल अवेलेबल है, ओके, बॉम्बे हाई, आपको पता होगा बॉम्बे हाई वगैरह, ठीक है ना, तो वहां से हम मिनरल ऑयल कलेक्ट करते हैं। नेचुरल गैस की बात करेंगे, सो वी हैव नेचुरल गैस दैट इज एलपीजी एंड सीएनजी, वो भी हम यूज कर रहे हैं, हम कोल यूज कर रहे हैं, हमारे पास कुछ माइंस है ऑलरेडी, वहां से हम माइंड करके एक्सावेट करके हम यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहाँ के एरिया का सर्वे किया है, कितना कोल, कितने टन कोल वहाँ पे मिल सकता है, उसका टाइप्स कौन सा है, वो बिटुमिनस है, पीट है, लिग्नाइट है, क्या है, उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, क्वालिटी क्या है, ये सारी चीजें एग्जामाइंड होने के बाद ऑलरेडी वी आर स्टार्टेड द यूजेस ऑफ दैट रिसोर्सेज एंड दैट आर कैटेगराइज्ड इनटू एक्चुअल रिसोर्सेज। जो आपके सामने दिख रहे हैं रिसोर्सेज, दे आर ऑल कंसिडर्ड एज एक्चुअल रिसोर्सेज। एंड आफ्टर दैट
our next topic is reserve resources. So reserve category, reserve resources. So same way potential की तरह ही same है ये. It is a part of an actual resources is developed profitably with available technology and it is termed as reserve resources. For example, an increase in the world price of metals such as iron makes it profitable to utilize even a low grade ore and thus resources becomes a reserve. So friends, कुछ ऐसे अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं रिजर्व रिसोर्सेस, यानी कि कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस है हमारे पास. फॉर एग्जांपल मेटल के लिए, मेटल का इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू बढ़ रहा है, सो इंस्टेड ऑफ मेटल वी कैन यूटिलाइज सम अदर अल्टरनेटिव. जैसे कि हम आयरन की बात करेंगे, आयरन मेटल की बात करेंगे, उसमें हम अल्टरनेटिव कुछ मेटल्स या कुछ अल्टरनेटिव मटेरियल्स वी कैन यूज टू प्रिपेयर द इंस्ट्रूमेंट्स और द थिंग्स. तो वो हुआ रिजर्व कैटेगरी. अंडरस्टैंड? द अल्टरनेटिव रिसोर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस, अल्टरनेटिव रिसोर्सेस फॉर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस कॉल्ड एज रिजर्व रिसोर्सेस. सो there is a hope and there is a need to utilize the other metals instead of iron, because in international market the price of irons are day by day rising. So that is why we are searching the alternative options and that are all considered as reserve resource. So same example, potential भी reserve ही resources हो सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल टीडल पावर, अगर आज आपके कोल खत्म हो गया, सो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो हमें मूव करना पड़ेगा टीडल एनर्जी की तरफ, विंड एनर्जी की तरफ, सोलर एनर्जी की तरफ. सो दैट आर आल्सो द रिजर्व रिसोर्सेस वी कैन कंसीडर. ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. This is all about this new type of the resources, reserve, potential and actual resources. So make a notes and study it carefully and enjoy. Afterward we will study another types of resources. So thank you very much.